Well, students, we have so far studied in last chapter, why non-cooperation. So we have studied paragraph number 1 and paragraph number 2. We have already completed. And next, or the last paragraph of why non-cooperation have to start. First of all, I would like to read this paragraph line by line. Then I will convince you in Hindi and English bilingual. Okay. Many within the Congress were, however, concerned about the proposal. They were reluctant to boycott the council election scheduled for November 1920. And they feared that the movement might lead to popular violence. In the month between September and December, there was an intense tussle within the Congress. For a while, there seemed no meeting point between supporters and the opponents of the movement. Finally, at the Congress session at Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and non-cooperation program was adopted. Okay, so now I will convince you in my own language, own meaning, own word. Many within the Congress were, however, concerned about the proposal. As we have read that Mahatma Gandhi and Shaukat Ali and Muhammad Ali decided to launch non-cooperation movement with Khilafat movement. And Gandhiji was in the favor that both Hindu and Muslim must be come together into the umbrella of the Congress, so that they can launch a nationwide movement. Without the unification of Hindu and Muslim, there cannot be any achievement to the political level. So he was in the waiting for how they both committee can be come together. The same thing happened when Muhammad Ali and Shaukat Ali came to Mahatma Gandhi and said to launch the movement which will be start with non-cooperation. So he was ready, but when he was ready, it is needed to get proposal or approval before the Congress committee. So when Congress committee know about the proposal of joint movement, most of the Congress person were aware about the joint movement, but some were in the favor of this movement and some were against the movement, because most of the Congressee were in the fear that if both of us join and start a non-cooperation movement, that is possibility that maybe a violence will start again, and as it was happened in earlier movement. तो अभी हिंदी में सुनो। जैसा कि हमने अब तक पढ़ा कि गांधी जी ने ये पाया कि जब तक इस देश में हिंदू और मुस्लिम एक नहीं हो जाएंगे, तब तक कोई भी आंदोलन अपने सक्सेस को प्राप्त नहीं कर सकता, यानी सफल नहीं हो सकता। किसी भी आंदोलन की सफलता के लिए सभी कम्युनिटी का इकट्ठा होकर के एक साथ आंदोलन में पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। वो तलाश में थे कि हिंदू मुस्लिम किसी तरीके से एक हो जाए। उनकी तलाश बिल्कुल राइट टाइम पे खत्म होती है, यानी उनकी तलाश पूरी होती है जब मोहम्मद अली और शौकत अली गांधी जी के पास आकर के ये प्रपोजल रखते हैं कि क्यों ना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ मिला करके चलाया जाए। तो जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ मिला के चलाया जाएगा तो हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हो जाएंगे। अब ये मूवमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जब मूवमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो इसकी सफलता की चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। यही प्रपोजल गांधी जी ने मान लिया
लेकिन गांधी जी कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेस के वर्कर थे, लेकिन वो हेड नहीं थे, लीडर नहीं थे। और इसकी मान्यता तभी मिलेगी जब कांग्रेस के लीडर्स या उसके जो वर्कर हैं इनके सामने प्रपोजल रखा जाए और वो बहुमत से उसको एक्सेप्ट कर लें। तो जब ये प्रपोजल गांधी जी के द्वारा कांग्रेस कमेटी के सामने लाया गया, तो कांग्रेस कमेटी में कुछ ऐसे लोग थे जो इस गांधी जी के इस मूवमेंट से पक्षधर थे, यानी वो चाहते थे कि हाँ सही है ऐसा हो। लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि इसके अपोजिट में थे। कुछ लोग डरते थे कहीं ऐसा नहीं होगा कि अगर हम इस आंदोलन को स्टार्ट करेंगे तो फिर से वायलेंस हो जाएगा, जैसे कि पहले के आंदोलन में बहुत सारे वायलेंस से लोगों की जान गई थी। ठीक है ना। फिर क्या था, इन द month between September and December there were an intense tussle within Congress। तो सितंबर और दिसंबर के महीने में तक इस डिसीजन पे कोई पहुंच ही नहीं सका, कांग्रेस ने इस पे कुछ काम नहीं किया। मतलब वो पेंडिंग में बिल पड़ा हुआ था, वो प्रपोजल पेंडिंग में था और टसल थी कि करें कि ना करें। टसल मना ऊहापोह, करें या ना करें, कंफ्यूजन की स्थिति। ऐसी कांग्रेस में स्थिति, कुछ चाहते थे हो, कुछ चाहते थे ना हो। फिर for a while there seemed no meeting point between the supporter and the opponent of the movement। काफी समय तक कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कांग्रेस में कुछ इस प्रपोजल के सपोर्टर थे और कुछ इसके अगेंस्ट में थे, कहीं वो पर मिल करके एक कॉमन सहमति बन सके, एक बातचीत बन सके, ऐसा बनते हुए कभी नजर नहीं आ रहा। फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली फाइनली at the Congress session at Nagpur in December 1920। अंतिम में नागपुर के कांग्रेस सेशन में जो दिसंबर के महीने में हुआ, उसमें एक कॉम्प्रोमाइज काम कर गया, एक समझौता बन गया। वो समझौता बन गया कि चलो ठीक है, कांग्रेस अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एक्सेप्ट करती है, जिसमें खिलाफत मूवमेंट भी इकट्ठा होकर के काम करेगा, यानी हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर के इस मूवमेंट में भाग लेंगे। अब कांग्रेस ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यहां। फिर हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड। अब ये मूवमेंट किस तरीके से स्टार्ट होगा, किस तरीके से प्रारंभ होगा। हु पार्टिसिपेट इन इट, कौन इसमें भाग लेगा। हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप कन्विंस ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन। जो समाज के अलग अलग ग्रुप के लोग, अलग अलग संगठन हैं, वो इसको किस तरीके से समझेंगे, उनको कैसे समझाया जाएगा कि नॉन कोऑपरेशन क्या है, मतलब किस तरीके से आंदोलन स्टार्ट किया जाएगा, कौन कौन इसमें भाग लेगा, और जो भाग लेने वाले हैं या अलग अलग ग्रुप के लोग हैं नॉन कोऑपरेशन को क्या लेंगे, क्या समझेंगे, किस तरीके से समझ को इसको एक्सेप्ट करेंगे या इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये सब चीजें थी। आइए अब हम यहाँ से पढ़ते हैं सेकेंड, डेफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट। मूवमेंट में अलग अलग विचारधारा या अलग अलग समाज के ग्रुप के द्वारा क्या अलग अलग मीनिंग लगाई गई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। ठीक है ना, यही हम पढ़ेंगे। चलिए पहले हम थोड़ा सा यहां से पढ़ लेते हैं। क्या है, द नॉन कॉपरेशन Khilafat movement began in January 1920। You all students must have pen or pencil in your hand, and wherever I told you, please make underline or make a note in your notebook, or simply put underline in your book। So put underline over here। Okay। तो अभी यहाँ पर क्या है, मैंने जनवरी 1921 को अंडरलाइन किया, क्योंकि जनवरी 1921 से क्या हुआ, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट एक साथ स्टार्ट होता है। ठीक, फिर वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। समाज के अलग अलग
संगठन या सामाजिक संगठन ने इस आंदोलन में भाग लिया, ईच विथ इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन, और हर एक सामाजिक संगठन का अपना अपना अलग अलग इच्छा और आकांक्षाएं इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ठीक है, ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, हर एक ने स्वराज के लिए आंदोलन किया। यानी स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, मीन्स जब अपने देश में अपना राज हो, अपना शासन हो, तो उसको कहेंगे स्वराज, यानी आजादी। ठीक है ना, स्वराज माना आजादी। बट द टर्म मेंट डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल, हालांकि सभी सामाजिक संगठन ने इसमें भाग लिया, लेकिन जो भी सबकी अलग अलग इच्छाएं और आकांक्षाएं इस आंदोलन से जुड़ी थी, इसीलिए सब ने इस आंदोलन के अर्थ को अपने अपने तरीके से लगा करके उसी तरीके से इसमें रिस्पॉन्स किया। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि कौन कौन से अलग अलग सामाजिक संगठन थे जिन्होंने इस आंदोलन में अपने अपने तरीके से पार्टिसिपेशन किया। ठीक है, आइए एक बार फिर से इसको देखते हैं। द मूवमेंट इन टाउन, सबसे पहले हम देखते हैं शहरों में इस आंदोलन का क्या हाल था। यानी गांव के पहले हम शहर को देखते हैं, फिर गांव की ओर चलेंगे। ठीक, द मूवमेंट स्टार्टेड विथ मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज। Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. Council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of non-Brahmin, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahman had access to. अब यहाँ पर शहरों में देखो क्या हाल था। शहरों में क्या हाल था कि जो शहर के आंदोलन था, इस आंदोलन में जब लोगों ने पार्टिसिपेट किया तो शुरुआत हुई कि किस तरीके से आंदोलन होगा। तो पहले ये हुआ कि लोग अपना क्या करेंगे, टाइटल को क्या करेंगे, वापस गवर्नमेंट को कर देंगे। यानी सरकार ने जो जिसको भी उपाधि दी थी उस उपाधि को वो क्या करेंगे, सरेंडर कर देंगे। और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पर नॉन कॉपरेशन करेंगे। नॉन कॉपरेशन किस तरीके से करेंगे कि जो लोग भारत में हैं, जो कि अंग्रेजों के सहयोग से, अंग्रेज हमारे भारतीयों के सहयोग से इतने साल तक हम पे शासन करते चले आ रहे हैं, अगर ये सब भारतीय मिल करके अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर देंगे तो अंग्रेज असहयोग के द्वारा वो खुद हमको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और मजबूर होकर के हमको वो आजादी दे देंगे, हमें स्वराज मिल जाए। इस क्रम में नॉन कोऑपरेशन की जरूरत थी, यानी सभी भारतीय मिलकर के अंग्रेजों का नॉन कोऑपरेशन करेंगे। किस रूप में नॉन कोऑपरेशन करेंगे कि कोई भी टीचर सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा चलाए गए स्कूल में पढ़ाने नहीं जाएगा। कोई भी प्रोफेशनल या कोई भी प्रोफेसर, डॉक्टर जो भी हैं, वो डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने नहीं जाएंगे। और यही काम स्टूडेंट भी करेंगे, स्टूडेंट भी पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे अंग्रेजी स्कूलों की, हिंदी की नहीं। ठीक है ना। हेडमास्टर्स, टीचर्स अपने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिए। जो लॉयर थे, जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, उनको कोर्ट में प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। उसके बाद क्या होता था, हर कुछ साल बाद काउंसिल का इलेक्शन होता था, जैसे असेंबली इलेक्शन जिसको कहते हैं, पंचायत हर 5 साल पे होता है ना इलेक्शन। तो वहां पर इलेक्शन होने का टाइम था, जिस समय जनवरी 1921 में नॉन कॉपरेशन स्टार्ट किया गया, उसी समय लगभग इलेक्शन का टाइम था। तो इलेक्शन का बाइकआउट करने का डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन में कोई भी इंडियन खड़ा नहीं होगा और ना ही कोई इंडियन उसमें वोट करेगा।
ऐसा डिसीजन लिया गया तो सभी ने काउंसिल पॉलिटिक्स में जाने से मना कर दिया, कोई नहीं गया। लेकिन एक मद्रास में एक जस्टिस पार्टी थी, उसने ऐसा नहीं किया। जस्टिस पार्टी दलितों की पार्टी थी, नॉन ब्राह्मण पार्टी थी, यानी दलित भी थे, पिछड़े भी थे, सब कुछ था इसमें। क्योंकि अभी तक जो काउंसिल पॉलिटिक्स थी उसमें पावर में हमेशा तक ब्राह्मण वर्ग का वर्चस्व था, तो यही अवसर था नॉन ब्राह्मण जस्टिस पार्टी का कि अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा और हम पार्टिसिपेट करेंगे तो हम तो जीत ही जाएंगे। तो इस तरीके से जस्टिस पार्टी को पहली बार असेंबली में इलेक्शन को जीतने और असेंबली के मेंबर बनने का टाइम या मौका मिला। ठीक है, ये तो हुआ मद्रास की घटना। तो आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन आ सकता है विच काउंसिल पॉलिटिक्स, मतलब विच पार्टी एंटर्ड इन द काउंसिल पॉलिटिक्स एंड फ्रॉम वेयर दिस पार्टी बिलोंग। तो आप कह सकते हो मद्रास की ये पार्टी थी, इस पार्टी का नाम जस्टिस पार्टी था, जो नॉन ब्राह्मण पार्टी थी, जो पहली बार काउंसिल पॉलिटिक्स में पहुंच सकी। ठीक है, अब हम यहां से देखें, आइए इसको देखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, the effect of non-cooperation on the economic front were more dramatic. Foreign goods were boycotted, liquor shops picketed, and foreign clothes burned in huge bonfire. The importance of foreign clothes halved between 1921 to 22. Its value dropped from 102 crore rupees to 57 crore rupees. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods and finance foreign trade. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mill and handloom went up. अभी इसको हिंदी में समझो। हमने देखा कि शहरों में किस तरीके से मूवमेंट आगे बढ़ा। ये अभी हम शहरों की ही बात कर रहे हैं, अभी हम गांव पे नहीं गए हैं, शहरों में ही देख रहे हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं, दूसरी चीजों को हम ले रहे हैं। क्या हुआ, अब यहाँ पर अगर हम देखें इकोनॉमिक फ्रंट पर, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रख करके देखें तो अंग्रेजों को किस तरीके से हम लोगों ने चोट किया इस आंदोलन के द्वारा, वो हम देखेंगे। तो लिखा है द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट मतलब होता है आर्थिक रूप से हमने अंग्रेजों को कितना नुकसान किया। तो इसमें बताया जा रहा है कि उस समय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो हम लोगों ने किसी भी तरीके की विदेशी वस्तुओं का बाइकॉट किया। जो चीजें अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी और जो मैनचेस्टर के गुड्स थे जिसको कि अब तक हम यूज करते थे, दुकानदार उसको बेचा करते थे, लोग उसको खरीदा करते थे, अब दुकानदारों ने उसको बेचना बंद कर दिया, पब्लिक ने खरीदना बंद कर दिया। सिर्फ यही नहीं, लिक्वर शॉप्स पिकेटेड। लिक्वर शॉप मतलब होता है सारा शराब की दुकानें, मदिरालय, जहां पर लोग जाकर के शराब खरीदते हैं और शायद पीते भी, तो इसको लिक्वर शॉप्स कहेंगे। ठीक है ना, वहां क्या किया गया, पिकेट किया गया। पिकेट मीन्स होता है धरना देना। जब शराब की दुकानों पर जाकर के लोग धरना देते हैं जिससे शराब की पीने वाले लोग दुकान के अंदर में जाने ना पाए और जो शराब का व्यापारी है वो शराब बेचने ना पाए, तो इस तरीके से शराब की दुकानों पे धरना दिया गया, विदेशी वस्तुओं और वस्त्रों का बाइकआउट किया गया और फॉरेन क्लोथ बर्न इनटू द ह्यूज बोनफायर। और बड़े बड़े मोहल्लों और चौराहे पर जहां तहां बड़ी बड़ी विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई गई, होलिका जलाई गई। ठीक है ना, ताकि ये दिखाया जा सके कि हम विदेशी चीजों का किस तरीके से बाइकआउट कर रहे हैं। आगे क्या हुआ, द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ हाफ बिटवीन 1921 to 22। अब इस तरीके से जब लोगों ने नॉन कोऑपरेशन किया तो इसका परिणाम ये हुआ कि 1921 और 22 के दौरान जो विदेशों से आयात हुआ करते थे सामान, वो आधा हो गया। जितना किया जाता था उसका आधा एक ही साल में उनका जो
एक्सपोर्ट था अंग्रेजों का वो आधा हो गया या इंडिया का इंपोर्ट आधा हो गया, एक ही बात। इट्स वैल्यू ड्रॉप फ्रॉम 102 यानी 102 करोड़ रुपए से घट करके 57 करोड़ रुपया, लगभग आधा हो गया एक साल के अंदर ही। इस तरीके से अंग्रेजों को बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति हुई। फिर इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स एंड फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। बहुत सारे जगह पर व्यापारियों और उद्योगपतियों ने विदेशी वस्तुओं का आदान प्रदान करना बंद कर दिया और विदेशी चीजों में अपने धन को इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, यानी वो विदेशों में पैसा लगाना उन्होंने बंद कर दिया। इसका परिणाम क्या हुआ? एज द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड, जैसे जैसे बाइकॉट यानी बाइकॉट मूवमेंट बढ़ता चला गया एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इंपोर्टेड क्लोथ एंड वेयरिंग ओनली इंडियन। जैसे लोग बाइकआउट करने लग गए विदेशी वस्तु और वस्त्रों का, तो अब लोग क्या करने लग गए हैं, जो भारतीय लोग थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारतीयों के द्वारा चलाए गए हैंडलूम को स्टार्ट किया। समझे ना? अब विदेशों के द्वारा बनाए गए मिल के कपड़े नहीं, भारतीयों के द्वारा बनाए गए मिल के कपड़ों को लोग प्रयोग करने लग गए और साथ ही साथ हाथ से बनाए गए कपड़ों को भी लोग पहनने लग गए। अब इसका फायदा ये हुआ कि अंग्रेजों का तो अच्छा घाटा हुआ और हमारा अच्छा फायदा ये हुआ कि हमको काम मिल गया, हमारे लोगों को काम मिल गया। ठीक, तुम लोग बीच में कुछ बोल दिया करो, सही गलत। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ, इसको पढ़ते हैं। But this movement in the cities gradually slowed down for the variety of reasons. अब यहाँ हम देखेंगे कि शहरों में जो आंदोलन चला बहुत तेजी से चला, लेकिन कुछ समय बाद ये आंदोलन वीक होता चला गया, कमजोर होता चला गया। अब ये आंदोलन या नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट शहरों में वीक या कमजोर होता चला गया, तो क्यों कमजोर हुआ उस रीजन को जानेंगे, उस कारण को हम पहचानेंगे। ठीक है, आइए। खादी क्लोथ was often more expensive than mass production milk cloth and poor people could not afford to buy it. How they could buy, how then could they boycott milk cloth for too long? Similarly, the boycott of British institution posed a problem. For a movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in place of British one. They were slow to come up, so the students and teachers began trickling back to government school and lawyers joined back work in government court. देखो, जैसा कि बोला गया कि खादी का प्रयोग किया जाने लगा शहर सब जगह, और लोग हाथों से और भारतीय लोगों के मिल के द्वारा बनाए गए कपड़े पहनने लग गए। लेकिन अगर हम खादी की बात करें, खादी उस कपड़े को कहते हैं जो मोटा कपड़ा होता है, जो कि हाथों से बनाया जाता है। अब भाई कोई भी चीज अगर हाथ से बनाई जाएगी तो उसमें कारीगरी के ज्यादा समय लगेगा और जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी जो मिल के बनाए अंग्रेजों के द्वारा जो कपड़े थे वो सस्ते थे और हाथ से बनाए खादी के कपड़े महंगे थे। तो भैया किसी तरीके से पैसे वाले लोग तो इसको सरवाइव करते चले गए, लेकिन जो गरीब लोग थे अब वो पैसे को ज्यादा, उनको कपड़े पे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था। अगर वो खाने पे खर्च करते तो समझ में आता, पहनने के लिए उनको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा था, इसलिए वो मजबूरी में धीरे धीरे फिर से मैनचेस्टर गुड्स जो कि अंग्रेजों की मिल के द्वारा बनाया जाता है उसको फिर से खरीदने लग गए। जब फिर से खरीदने लग गए तो अंग्रेजों की इनकम फिर से बढ़ने लग गई, तो इस तरीके से ये मूवमेंट वीक हो गया। ये तो एक था। दूसरा क्या था, हमने बहुत चीजों को बाइकआउट किया, बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का, वस्त्रों का, सब कुछ का। लेकिन भाई ये है कि अगर हम किसी चीज का बहिष्कार करेंगे तो उसके एवज में दूसरी चीज तो यूज करेंगे ना। जैसे मान लो हम कहते हैं कि आज से हम चाय नहीं पियेंगे, ठीक है मत पियो, लेकिन कॉफी या दूध तो पियोगे ना, कि कुछ भी नहीं पियोगे, खाली पानी से बात नहीं बनेगी। अब आपको उसके बदले में दूध या कॉफी चाहिए, क्योंकि चाय क्या है, अंग्रेजों की देन है। अब हम इसका बाइकआउट करेंगे तो फिर क्या पियेंगे, दूध पियेंगे।
अरे भैया गाय भैंस होगी तब तो दूध पियोगे, तब क्या करोगे? तो वही कंडीशन यहाँ पर भी थी कि यहाँ पर हमने बाइकआउट तो कर दिया, उनका बाइकआउट कर दिया, उनका हम यूज नहीं करते थे, लेकिन फिर सवाल ये कि दूसरी कोई चीज तो होनी चाहिए जिसको हम यूज करेंगे। तो जिस तरीके से स्कूल और कॉलेजेस को बाइकआउट किया गया था स्टूडेंट और टीचर्स के द्वारा, क्योंकि वो अंग्रेजी स्कूल था और अंग्रेजों को द्वारा रन किया जाना था, तो भैया बच्चे तो यहाँ पढ़ाई छोड़ करके कहीं और तो पढ़ेंगे ना, नहीं तो फिर उनका करियर चौपट हो जाएगा। और टीचर्स जो पढ़ाने वाले अगर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना छोड़ देंगे तो उनकी इनकम, दूसरी इनकम कहाँ से आएगी अगर वो दूसरे स्कूल को नहीं जान करेंगे। यानी भारतीयों के द्वारा स्थापित स्कूलों में अगर बच्चे वापस ना गए और टीचर्स ना गए तो उनकी इनकम और उनकी पढ़ाई दोनों खराब हो जाएगी। तो अब यहाँ पर भारतीयों के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल की संख्या बहुत लिमिटेड थी, ना के बराबर थी। तो भैया टीचर्स और स्टूडेंट वापस फिर से उसी स्कूल में जाने लग गए हैं जहां उन्होंने ड्रॉप किया था। इसी तरीके से कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले जो लॉयर थे, कोई उनका कोर्ट तो सरकारी ही होता है, कोई प्राइवेट कोर्ट तो होता नहीं है, मजबूरी में उनको फिर से अपने अपने कोर्ट को ज्वाइन करना पड़ा। तो इस तरीके से टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, या गरीब लोग हो गए, इनको फिर से मजबूरी में जो करने का बाइकआउट किया था वापस फिर से वहीं पर करने लग गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि शहरों में ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किस तरीके से कमजोर होता चला गया। हेलो, यस सर। समझ में आया बच्चों? यस सर। हाँ, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं नेक्स्ट 2.2 रिबिलियन इन द कंट्री साइड। देखो अभी हमने जो ऊपर पढ़ा ये था मूवमेंट इन टाउन, अब यहाँ देखेंगे रिबिलियन या विद्रोह इन द कंट्री साइड, मतलब होता है गांव, गांव के इलाके में होने वाले विद्रोह कैसे थे या नॉन कोऑपरेशन का असर गांव के लेवल पे कैसा था। शहरों के लेवल पे हमने देख लिया, गांव में आते हैं, गांव की ओर चलते हैं, गांव में देखते हैं किस तरीके से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया गया। पहले इस पैराग्राफ को हम पूरा कलर्ड कर लें इतना तक, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो आगे करेंगे। रिबिलियन इन द कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब गांव, ठीक है। रिबिलियन मतलब आंदोलन या विद्रोह। अब फ्रॉम द सिटीज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। जैसा कि गांधी जी ने चाहा था कि ये मूवमेंट गांव गांव शहर शहर तक फैले, तो हुआ ऐसा ही, शहरों से होते हुए ये गांव, शहरों से होते हुए ये आंदोलन गांव तक फैल गया। फिर क्या था? इट ड्रॉ इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट एंड ट्राइब्स which were developing in different part of India in year after the war. Year after the war, कौन सा वार? फर्स्ट वर्ल्ड वार की बात हो रही है, जो 1918 तक चला उसके बाद की बात हो रही है। तो जो गांव में आंदोलन था वो आंदोलन मुख्य रूप से शहरों से होते हुए गांव में आया। और गांव के आंदोलन का जो नेचर था, यहाँ बाइकआउट का नेचर नहीं था, यहाँ पर विदेशी वस्तुओं और स्कूलों को छोड़ने और पकड़ने का नहीं था, लॉयर के द्वारा कोर्ट को पकड़ने या छोड़ने का नहीं था, बल्कि यहाँ पर दूसरे टाइप का मूवमेंट था वही, मगर उसका नेचर अलग था। नेचर ऐसे अलग था कि गांव के लेवल पर और क्या नाम है, ट्राइबल यानी जनजाति के, ट्राइबल मतलब जंगल में रहने वाले जो लोग होते हैं वो लोग जनजाति कहे जाते हैं, तो इसलिए उनको हम ट्राइब्स कहते हैं, ठीक है ना। ट्राइब्स मतलब जनजाति लोग, गांव में रहने वाले विलेजर्स और गांव जंगल में रहने वाले ट्राइब्स। तो अब इनका आंदोलन किस तरीके का था? इनका आंदोलन अलग टाइप का था। ये किसान होते थे मुख्य रूप से, गांव के लोग तो किसान ही होते थे। अब किसानों का आंदोलन किसके खिलाफ होगा? अपने जमींदारों और तालुकदारों के खिलाफ होगा। क्यों? बात सही कह रहा हूं ना। गांव के लोगों की समस्या क्या होगी? उनकी समस्या होगी लगान को देने की, टैक्स को देने की, और ये काम टैक्स कलेक्शन का काम जमींदार और तालुकदार करते हैं। तो कहने का मतलब ये है गांव के लेवल पे जो आंदोलन था वो जमींदारों के खिलाफ था, तालुकदार के खिलाफ था, टैक्स के देने के अगेंस्ट में था, लगान देने के अगेंस्ट में था, ठीक है ना। तो आइए थोड़ा नीचे देखते हैं।
विच वी आर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया इन ईयर आफ्टर द वार, जो कि ये भारत के अलग अलग क्षेत्रों में फैलता चला गया विश्व युद्ध के, प्रथम विश्व युद्ध के बाद के समय की ये घटना है। आइए देखते हैं क्या क्या हुआ। शुरुआत करते हैं यहाँ से। एक बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पैराग्राफ, अक्सर आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पिछले साल के बोर्ड का पेपर उठाओ और देखो, इसमें से क्वेश्चन भी आया और पैराग्राफ भी आया। तो ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप लोग इंटरेस्ट लेके समझो तो अच्छा लगेगा। चलिए, इन अवध peasant were led by बाबा रामचंद्र। इन अवध, अवध क्या होता है जी? कौन बच्चा बताएगा ये अवध का मतलब क्या है? आप में से कोई भी बताए। अब तुरंत गूगल पे चेक मत करना, आता है तो बताओ, नहीं तो तुम बहुत तेजी से गूगल पे जाकर के ये वो करके फिर बता देते हो। नहीं बताओगे? चलो मैं बताता हूँ। देखो अवध क्या है। अवध एक्चुअली में ये एक, आपने नाम सुना होगा अवध के नवाब वाजिद अली शाह का, नाम सुना होगा, बोल दो। तो ये अवध पड़ता कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश का कुछ ऐसे इलाके हैं जिसको अवध के क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता था। यानी अवध का जो एम्पायर था, छोटा सा ही था, वो जहां जहां तक फैला हुआ था उस पूरे इलाके को अवध कहते हैं, जिसमें लखनऊ आ जाता है, ठीक है ना, जिसमें बाराबंकी आ जाता है, जिसमें रामपुर आ जाता है, ठीक है ना, और एक दो लखनऊ से सटे हुए और दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक दो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे रायबरेली आ जाता है, ये भी अवध क्षेत्र का ही पार्ट है। सर, हाँ जी सर, हाँ बोलो। अभी तो क्लास हुई थी सर हमारी, अभी तो थोड़ी देर पहले हुई थी। तुम्हारी क्लास हुई थी? तुम कौन हो? सातक शुक्ला सर, तो 10th क्लास की है। कौन सी क्लास? ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका था क्या? ये मैं क्या आप लोग को दोबारा पढ़ा तो नहीं रहा हूँ? सर एक बार अभी आपने 9th क्लास की क्लास ली तो थी। तो 9th के लिए तो ये तो क्लास 10th है ना बेटा। ओ, मैं 10th क्लास में चला आया। बल्ले, अच्छे करोगे, जाओ भागो। भाग रहे हैं सर। हाँ तो भाई मैं बात कर रहा था, हाँ, अवध क्षेत्र की। मैंने आप लोग को बताया ये अवध कहाँ पड़ता है, अब समझ में आ गया, ठीक। अब अवध क्षेत्र में क्या हुआ, यहाँ पर आंदोलन कैसे चला? तो पीजेंट वेयर लेड बाय बाबा रामचंद्र। पीजेंट मतलब किसान, किसानों का आंदोलन चलाया गया रामचंद्र, बाबा रामचंद्र के द्वारा। देखो गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था, लेकिन गांधी जी हर जगह तो नहीं जा सकते थे ना आंदोलन के लिए। लेकिन अब इस आंदोलन को बढ़ाने के लिए जो लोकल लेवल के लीडर्स होते हैं वो इस आंदोलन को अपने अपने इलाके में बढ़ाते हैं। तो अवध क्षेत्र में वहां के लोकल लीडर बाबा रामचंद्र थे, उन्होंने इसमें इस आंदोलन को आगे बढ़ाया अवध क्षेत्र में। एक्चुअली में वो थे कौन? वो एक्चुअली में वो थे एक सन्यासी, बाबा रामचंद्र। बाबा पहले कहते किसको थे? सन्यासी लोग को तो कहते थे ना। तो वो एक्चुअली में वो थे पहले सन्यासी, और जब वो सन्यासी थे उससे पहले वो जब नौजवान थे तो इनको जबरदस्ती पकड़ करके फीजी ले जाया गया था। Who had earlier been in Fiji as an indentured labor। जब वो सन्यासी बने उससे पहले वो जवान थे, जब वो नौजवान थे तो उनको जबरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा पकड़ करके ले जाकर के फीजी में ले जाया गया। फीजी में उनको इंटेंजर्ड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, यानी बहुत कम पैसा मिलता था और फुल टाइम काम करना होता था और खाना मिलता था। सर, हाँ जी, सर टाइम ओवर हो गया। टाइम ओवर हो गया, ठीक है, मैं भी ओवर कर दे रहा हूँ। फिर जब नेक्स्ट टाइम होगा तो यहीं से मैं पढ़ाऊंगा, बाबा रामचंद्र अवध वाला फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो यस सर।